को जाता है या उस वैल्यू सिस्टम को जाता है जो लोग खुद से क्रिएट करते हैं, जो सोसाइटी खुद से लोग क्रिएट करते हैं लिविंग इन दैट वन कंट्री. Okay, so author is saying that it is because only of those good people and worthy people, daring people, जो कि ऑनर की सेक के लिए और ट्रुथ की सेक के लिए सफ़र करते हैं and they stand up to any situation. Alright children, simple to understand. Now let's see the exercises. You have to do exercise on your own. It is very simple to do. Here B 5 questions. मैं एक्सप्लेन एक बार कर देती हूँ and you will do on your own. Later I will give answers for sure. What are some of the virtues that the people of a nation must have in order for it to achieve greatness? Virtue का मतलब होता है qualities. What are some of the qualities that people of a nation must have? Okay, ये हमने अभी पढ़ा है. I'll just tell you. Now, that they stand fast and suffer long for honors and truth's sake. These are the virtues that people should have. How do nation become strong? Nation becomes strong when they have a, ये देखो यहाँ पे लिखा है, people have a sound value system. Correct? In this red text, यहाँ पे देखना आप, if the people have a sound value system, the nation is bound to prosper. Alright, ये है सेकेंड वाले का आंसर. थर्ड, how should people react during hard times? Okay, it is not in the poem, but we can still write, we are having hard times right now. We should, we should help each other in any hard times rather. War हो, कोई pandemic हो, या फिर कोई और situation हो, emergency situation हो country में, we all must help each other. We should try to help each other as much as possible. We should be selfless in that situation. Okay. Also, we should take care that the children and women are safe because they are more vulnerable to any situation, especially women. Next question. Do you agree that it is important to behave well not only when being observed but at all times? Yes. For some reason, children, I don't think this is the correct question here. It is given behind the book only, as in behind the poem only, but this question is little out of the poem, but we can still answer this. Do you agree that it is important to behave well not only when being observed but at all times? Yes, it is very important to behave well at all times because that becomes your character. Once you start behaving well, it becomes your habit in a short period of time, and then it becomes your character in no time. Fifth one. Name any poem which awakens the feeling of nationhood. Okay. यहाँ पे आपको एक ऐसी पोएम का नेम देना है जो कि आप में नेशनहुड को अवेक करे, यानी कि आपके पेट्रियोटिज्म को अवेक करे. नाउ वी हैव a worksheet here now. Worksheet number 4. In this you have to write a letter, children. I will be giving you 2 examples. You have to write a letter to the principal telling that few students were hitting the stray dogs and you want to correct the situation. Okay, and if any problems you can please message me. These are the 2 examples that I have for you. These are the formats also and how you should write that also. The question is also given and the answer is also given here. Let us read this. Write an application to your principal requesting him to grant leave. Also mention reasons you are कमल और कमला. ठीक है, यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन लिखेगा उसका नाम दिया गया है, यानी कि आपका नाम होगा कमल या कमला. ठीक है, और आप अपने रीजंस दे रहे हैं ताकि आपको लीव ग्रांट करें. नाउ यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देने का मतलब ये है कि ये एक फॉर्मल लेटर है और जो मैंने आपको दिया है वर्कशीट में लिखने के लिए वो भी एक फॉर्मल लेटर है एंड इट इज़ इन योर कोर्स. सो कोई बच्चा मुझे ये नहीं कहेगा कि मैम इट इज़ आउट ऑफ द कोर्स, इट इज़ इन योर कोर्स, इसीलिए मैंने आपको दिया है. ऑलराइट,
One such question is in the reader book also, that we will do sometime later, maybe while the revision. Okay, now answer. Let's see the answer. Here she has written the example में लिखा है प्रिंसिपल, आपके स्कूल का नाम, जहाँ पे वो है उस जगह का नाम, देन डेट, देन डेजिग्नेशन और सैल्यूटेशन. सर, जो सर मैडम हम लिखते हैं उसको हम डेजिग्नेशन या फिर सैल्यूटेशन कहते हैं. ऑलराइट, यहाँ पे हमारे केस में हम लिखेंगे मैम, बिकॉज वी हैव अ लेडी हु इज़ अ प्रिंसिपल. ओके, देन आप अपना बॉडी लिखेंगे. जस्ट पुट अप द मार्कर. पहले आप स्कूल का नाम और एड्रेस लिखेंगे, फिर आप डेट लिखेंगे, फिर आप डेजिग्नेशन या सैल्यूटेशन लिखेंगे, देन आप उसकी बॉडी लिखेंगे विथ अ थैंक यू एट द लास्ट. ठीक है, थैंक यू, योर्स ओबीडियंट, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, यू आर ओबीडियंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल. ओके, एंड ओबीडियंट का मतलब ये भी होता है यहाँ पे लिखने का कि अब जो भी रिप्लाई मिलेगा दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय मी, नॉट जस्ट यू हैव टू राइट समथिंग दैट यू विल राइट ओबीडियंट. योर्स ओबीडियंट का मतलब है कि इस लेटर का जो भी प्रिंसिपल मैम रिप्लाई देंगी दैट विल बी फॉलोड बाय यू. देन आएगा आपका नाम. अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगी कमला, अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगी कमल, जो कि क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है. अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपना नाम ही लिखेंगे. ओके, देन आप अपना रोल नंबर और क्लास लिखेंगे. दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर फॉर क्लास 5. ओके, जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपका फॉर्मेट चेंज होगा, बिकॉज राइट नाउ आपको हम वो लेटर सिखा रहे हैं जो हो सकता है कि आपको लिखने पड़ें. ठीक है, नॉट योर पेरेंट्स. सो इफ़ योर पेरेंट्स आर सेइंग कि गलत है, इसमें ये नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, डोंट बॉदर, क्योंकि ये आपके लेवल का लेटर है. अगर आपको कोई लेटर लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, जो आपके पेरेंट को लिखना होगा एज अ पेरेंट वो एक अलग लेटर होगा. ओके, दिस इज़ फॉर यू पीपल, चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5, कि वो कैसे लेटर लिखेंगे ऑफ योर एज. ऑलराइट, आप पहले लिखेंगे स्कूल का नाम एंड एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन, बॉडी, thank you, yours obediently, or yours obedient, you can write yours obedient also, then your name and then your class and roll number. पहले क्या लिखेंगे, स्कूल एड्रेस, देन हम लिखेंगे डेट, देन हम लिखेंगे सैल्यूटेशन विच इज़ सर और मैम, देन हम लिखेंगे हमारा बॉडी. बॉडी में आपको कुछ भी लिखना हो सकता है कि आपका कुछ खो गया है, उसके लिए आप लिख रहे हैं, आपकी मम्मा बीमार है, आपको कहीं जाना है, लीव चाहिए, आपकी नोटबुक्स खो गई हैं, समथिंग हैज़ हैपेंड, उसके लिए आपको लेटर लिखना हो सकता है. तो दैट कुड बी एन नंबर ऑफ सिचुएशंस. तो बॉडी विल डिपेंड अपॉन व्हाट योर क्वेश्चन इज़. ओके, जो क्वेश्चन में होगा वही आपको बॉडी में उसका आंसर देना होगा. देन आप लिखेंगे थैंक यू, सॉरी, थैंक यू लिखेंगे. फिर यहाँ पे अपना योर्स ओबीडियंटली या जो भी आपको लिखना है वो लिखेंगे, नेम, क्लास, रोल नंबर, और नेम, रोल नंबर, क्लास दैट कुड वेरी. ओके, दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर. ऐसे आपको लेटर लिखना है. आई रियली होप कि आप सब लोग मुझे होमवर्क और वर्कशीट दोनों दें.